محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کی والدین کی موت ہو جائے تو ان کو جب دفنایا جائے تو ان کو دفن کر کے ان کے قبر کے قریب بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر اتنی دیر تک کرو جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے تقسیم کیا جاتا ہے، کیونکہ جب دفن کیا جاتا ہے تو میت اس طرح پریشان ہوتی ہے جس طرح ایک آدمی سمندر کی لہروں میں ڈوب کر مر رہا ہے۔ جب ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو میت پریشان نہیں ہوتی اور میت بہت خوش ہو جاتی ہے کہ اولاد نے میرا حق ادا کر دیا ہے۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ دلت بندھو اسکیم پر عمل ٹیآرایس حکومت کا تاریخی کارنامہ۔ ضلعی مرکز پر دلت بندھو استفادہ کنندگان میں ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی نے کی گاڑیوں کی تقسیم۔ ٹیآرایس ضلع صدر پی یو سی کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی، ٹی ایس آر ٹی سی چیئرمین باجریڈی گووردھن و ایم ایل اے بیگالا گنیش گپتا نے کی شرکت۔ رواں سال عازمین حج کے لیے خوشخبری۔ حج 2022 کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہونے کا راجیہ سبھا میں وزیر اقلیتی امور مختار عباس نقوی نے کیا اعلان۔ متحدہ ضلع میں بابو جگجیون راؤ جینتی تقریب کا جوش و خروش کے ساتھ انعقاد۔ شہر میں منعقدہ تقریب میں ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی، ٹیآرایس ضلع صدر پی یو سی کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی، ٹی ایس آر ٹی سی چیئرمین باجریڈی گووردھن، ایم ایل اے بیگالا گنیش گپتا و دیگر نے کی شرکت۔ سماج کا سب سے کمزور طبقہ دلت طبقہ ہے اور اس کی ترقی کے لیے سی ایم کے سی آر کی جانب سے متعارف کردہ اسکیم دلت بندھو کی پورے ملک میں نظیر رہی۔ ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچھرام سرینواس ریڈی نے استفادہ کنندگان یونٹ کی تقسیم۔ موسم گرما و ماہ رمضان کے مد نظر افطار کے دسترخوان پر آئی کئی تبدیلیاں، مشروبات کے استعمال میں ہوا اضافہ۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ جنتی خواتین کی سردار سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ یوم وصال سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک رپورٹ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چوتھی اور سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی۔ والدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھی۔ سید النساء العالمین، سید النساء الجنہ زہرا بتول طاہرہ اور زکیہ ان کے مشہور القاب ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ولادت کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ان کی ولادت باعث نبوی سے 5 سال قبل ہوئی، جبکہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس کی تھی۔ ایک اور روایت کے مطابق ان کی پیدائش 22 سے 1 سال پہلے ہوئی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ سن 162 میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے نہایت مطمئن اور تنہائی پسند تھے، نہ کبھی کسی کھیل کود میں حصہ لیا اور نہ گھر سے قدم باہر نکالا۔ ہمیشہ والدہ ماجدہ کے پاس بیٹھی رہتی، ان سے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایسے سوالات پوچھتی جن سے ان کی ذہانت و فطانت کا ثبوت ملتا۔ دنیا کی نمو نمائش سے سخت نفرت تھی۔ ایک دفعہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی عزیز کی شادی تھی۔ انہوں نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عمدہ کپڑے اور زیورات بنوائے۔ جب گھر سے چلنے کا وقت آیا تو سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قیمتی کپڑے اور زیور پہننے سے صاف انکار کر دیا اور سادہ حالات میں ہی محفل شادی میں شرکت کی۔ گویا بچپن ہی سے ان کی حرکات و سنکات سے خدا دوستی اور استغنا کا اظہار ہوتا تھا۔ حضرت
حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ رفتار و گفتار اور عادات و خصائل میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہترین نمونہ تھی۔ نہایت متقی، صابر خانہ اور دیندار خاتون تھی۔ گھر کا تمام کام کاج خود کرتی تھی۔ چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ گھر میں جھاڑو دینے اور چولہا پھونکنے سے کپڑے میلے ہو جاتے تھے، لیکن ان کے ماتھے پر بل نہیں آتا تھا۔ گھر کے کاموں کے علاوہ عبادت بھی کثرت سے کرتی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سلطان الفقراء تھے۔ فاطمہ زہرا رحمت اللہ علیہ نے بھی فخر و فاقہ میں ان کا پورا ساتھ دیا۔ جلیل القدر والد شہنشاہ دو جہاں تھے، لیکن داماد رضی اللہ تعالی عنہ اور بیٹی رضی اللہ تعالی عنہ پر کئی وقت کے فاقے گزر جاتے تھے۔ ایک دن دونوں میاں بیوی 8 پہر بھوکے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو کہیں سے مزدوری میں 1 درہم مل گیا۔ رات ہو چکی تھی۔ 1 درہم کے جو کہیں سے خرید کر گھر پہنچے۔ فاطمہ بطول رحمت اللہ علیہ نے ہنسی خوشی اپنے نامدار خاوند کا استقبال کیا، جو ان سے لے کر چکی میں پیسے روٹی پکائی اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دی۔ وہ کھا چکے تو خود کھانے بیٹھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت سید البشر کا یہ ارشاد یاد آیا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی بہترین عورت ہے۔ موسم گرما و ماہ رمضان کے مد نظر افطار کے موقع پر عوام میں گنے کے جوس کے استعمال میں اضافہ۔ افطار کے اوقات میں دکانات پر عوام کا ہجوم۔ موسم گرما کی شدت کے سبب ماہ رمضان میں رواں سال افطار کے دسترخوان پر مشروبات کا زیادہ سے زیادہ استعمال ہو رہا ہے، اور ان مشروبات میں بھی سب سے زیادہ گنے کے جوس کا استعمال کیا جا رہا ہے، جو کہ اس میں کافی قدرتی فائدہ پوشیدہ ہے اور معدہ و جسم کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، اور بھی اس کے استعمال کے کئی فائدے ہیں، جس کے سبب باشعور عوام افطار کے دسترخوان پر گنے کے جوس کا ہی کافی استعمال کر رہی ہیں، جس کو دیکھتے ہوئے شہر کے مختلف علاقوں میں بھی کئی گنے کے جوس کے دکانات کا بھی قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ تحریک انسانیت بچاؤ ویلفیئر فاؤنڈیشن کاماریڈی کی جانب سے غربا میں راشن کٹ کی تقسیم۔ تحریک انسانیت بچاؤ ویلفیئر فاؤنڈیشن کاماریڈی جو ایک دینی و فلاحی تنظیم ہے، جس کی جانب سے گزشتہ کئی سالوں سے فلاحی و ملی خدمات انجام دی جا رہی ہیں، اور رواں سال بھی اس تنظیم کی جانب سے پہلے مرحلے کے تحت تقریباً 40 غربا میں راشن کی تقسیم عمل میں لائی گئی، جن میں 21 قسم کے اشیاء خوردنوش رکھے گئے ہیں۔ اسی طرح ان کی جانب سے مستقبل میں بھی غریب عوام تک راشن کی تقسیم کے لیے ترکیب تیار کی جا رہی ہیں، تاکہ غربا کو بر وقت مدد فراہم کی جائے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تحریک انسانیت بچاؤ فاؤنڈیشن کے تحت پچھلے سال کی طرح اس سال بھی غریبوں، مستحقوں اور ضرورت مندوں میں راشن پیک کی تقسیم عمل میں لائی جا رہی ہے۔ اس پہلے مرحلے میں تقریباً 40 پیکیجز انشاءاللہ ضرورت مندوں میں تقسیم کی جائیں گے۔ اس میں تقریباً کھانے پینے کی ضرورت کا سامان 14 قسم کے رکھے گئے ہیں، 21 قسم کے آئٹم اس میں رکھے گئے ہیں، اور تقریباً اس کا تخمینہ اور اس کی قیمت 1500 ہے، جو ہمارے شہر کے مالدار حضرات ہیں اور ہر سال جو حصہ لینے والے ہیں اور ان کاموں میں دلچسپی رکھنے والے ہیں، وہ ہمارے فاؤنڈیشن کے احباب سے ضرور رجوع ہوں، تاکہ شہر میں جو ضرورت مند لوگ ہیں رمضان کے مہینے میں مہنگائی کے دور میں وہ روزہ صحیح طور پر رکھ سکیں، شہر میں صحیح ان کے لیے انتظام ہو سکے، اور شام کے کھانے کے لیے بھی ان کے لیے سہولت ہو۔ جو حضرات اس سلسلے میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ ہمارے فاؤنڈیشن کے جناب عباد اللہ صاحب، جو اس سلسلے میں ذمہ دار بنائے گئے ہیں راشن پیک کی تقسیم کے سلسلے میں، ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح ہمارے جنرل سیکریٹری جناب عمر صاحب اور دیگر کارکنان جو آپ کے محلوں میں اور آپ کی بستیوں میں رہتے ہیں، شہر کی سطح پر ہمارے جو کارکنان ہیں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے کارکن پہنچ کر آپ سے وصول کر لیں گے، اور ضرورت مندوں میں اپنا نمبر بولیے، کام تقسیم ہوگا انشاءاللہ۔ نمبر بولیے۔ 99 122 122 17 009۔
हज 2022 के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। राज्यसभा वज़ीर अखिलती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। हुकूमत हिंद की जानिब से हज की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। राज्यसभा में वज़ीर अखिलती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने वक्फा सफर के दौरान कहा कि हज गुज़िश्ता 2 बरसों से कोरोना बहरान की वजह से नहीं हो रहा था। इस बार इस सफर की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इन्होंने कहा कि सऊदी अरब की हुकूमत को फैसला करना है कि हिंदुस्तान से कितने आज़मीन हज पर जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस के नदीमुल हक ने ये मसला उठाया और कहा कि इस बार हज के लिए लोगों से दस्तावेजात बनवाए गए हैं, लेकिन इस बार भी हज को लेकर गैर यकीनी सूरत हाल है। बाबू जगजीवन राम जयंती के मौके पर अखिल भारतीय सफाई मजदूर संगम कायदीन की जानिब से पेश की गई खराजे तहसीन। जगजीवन राम जयंती के मौके पर अखिल भारतीय सफाई मजदूर संगम की जानिब से इनके मुजस्समे को फूल मालाएं डालते हुए खराज अक़ीदत पेश की गई। इस मौके पर तंजीम के रियासती सदर मचल श्रीनिवास ने कहा कि बाबू जगजीवन राम एक अजीम कायद थे। इन्होंने समाज के कमजोर तबके को मसावी हक दिलाने के लिए काफी जद्दोजहद की थी। इस मौके पर इनके हमरा रियासती सेक्रेटरी सिद्धम राजेंद्र नरेंद्र, जिले सदर एस विजय कुमार, जिले एम चंद्रशेखर व दीगर मौजूद थे। ज़ात पास पाक मुआशरे की तामीर के लिए साबिक़ा नायब वज़ीर आज़म बाबू जगजीवन राम की जानिब से फ़राहम करदा ख़िदमात को रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने काबिल सताइश करार दिया। साबिक़ा नायब वज़ीर आज़म बाबू जगजीवन राम की 113वीं सालगिरह तक़रीब के पेश नज़र शहर के राजीव गांधी ऑडिटोरियम में मुनक़दा जयंती तक़रीब में अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने शिरकत करते हुए इस मौके पर रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी, ज़िले टीआरएस सदर आर्मू रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी, MLC VG गौड़ व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने खिताब करते हुए बाबू जगजीवन राम एक अजीम रहनुमा थे, जिन्होंने ज़ात पास पाक मुआशरे की तामीर के लिए अनमोल तरीन खिदमात फराहम करने का इजहार किया। ట్రాన్స్పోర్ట్ సైడ్ కమర్షియల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సైడ్ పోండి, కార్లో మనం ఏదైనా ఎంజాయ్ చేద్దామని షోప్ సైడ్ పోకండి, 4 పైసలు సంపాదించేటటువంటి దారిలో పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్ ఉంది, అగ్రికల్చర్లో చాలా రకాలు ఉన్నాయి. పెస్టిసైడ్ షాపులు పెట్టుకోవచ్చు, ఫర్టిలైజర్ పెట్టుకోవచ్చు, విత్తనాల షాపులు పెట్టుకోవచ్చు, మోటార్లు, ఎలక్ట్రికల్ చాలా రకాలైనటువంటి ప్రోడక్ట్స్ పెట్టుకోవచ్చు. అదే వ్యాపారంలో కిరాణా షాపులు, మెడికల్ షాపులు, సిమెంట్ షాపులు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. 10 లక్షల పెట్టుబడి పెడితే దాని మీద మనం డెవలప్ కావాలి. आबे जमजम की क्वालिटी चेकिंग, रोजाना 100 नमूनों की जांच। सदारत आमा बराए उमूर हरमैन शरीफैन की जानिब से जमजम के पानी की क्वालिटी चेकिंग का अमल रमज़ानुल मुबारक के दौरान बढ़ा दिया गया है। जमजम के पानी के तकरीबन 100 नमूने जांच के लिए रोजाना लेबार्ट्रियों को भेजे जाते हैं। तजुर्बे गाहों में इन नमूनों में पानी के मियार और हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इनका माइक्रो व बायोलॉजिकल और कीमियाई तजज़िये किए जाते हैं। जमजम की जाँच का अमल मस्जिद हरम की छत पर वाक़ खुसूसी लेबार्ट्री में किया जाता है कि लैब पीने के पानी के तजज़िये में इस्तेमाल होने वाले आला तरीन बैनुल अक़वामी मियारात से लेस है। इसमें माहिरीन जमजम के पानी के इंतजाम के लिए जरूरी टेस्ट कराने के लिए काम कर रहे हैं। लेबार्ट्री का अमला मस्जिद हरम में जमजम के पानी के तमाम जराए से रोजाना नमूने निकालने का काम करता है। पानी के नमूने पानी के कूलरों, गर्म और ठंडे फिलिंग पॉइंट, स्टेनलेस स्टील की टैंकियों, पोर्टेबल कूलरों, जमजम के पानी के कूलिंग टैंकों और जमजम के पानी की बोतलों से लिए जाते हैं। इस जांच का मकसद पानी को हर किस्म की आलूदगी और जरासीम से पाक करने के बाद इन्हें अल्लाह के मेहमानों में तकसीम करना है, ताकि बैतुल्लाह का क़सद करने वाले अहल ईमान की जिस्मानी सेहत और हिफाजत का खास ख्याल रखा जा सके। जमजम के नमूनों के तजज़िये का अमल माइक्रो व बायोलॉजिकल से शुरू होता है। पानी को तजज़िया हिफाजती बूथ तजज़िये की जगह अल्ट्रावायलेट चाउ से जरासीम से पाक करके बैक्टीरिया की खोज के लिए माहौल को
तैयार करके इसे जमजम के पानी में मिलाकर और इसे इन्क्यूबेशन के लिए मुख्तस जगह में दाखिल करने से शुरू होता है। पानी के नमूनों को 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के लिए 37 डिग्री सेल्सियस के दर्जे हरारत पर रखा जाता है। इस दौरान बैक्टीरिया की अफजाइश का मुशाहिदा किया जाता है। कीमियाई तजज़िये के दौरान पानी में नमकियात की फीसद, pH, क्लोरीन और दीगर कीमियाई अनासर के तनासब का सिर्फ 4 घंटे के अंदर पता चल जाता है। आब ज़मज़म हर मुसलमान के लिए मुक़द्दस पानी का दर्जा रखता है। सऊदी अरब को चाहे उम्रा हो या हज या और कोई मौका, दुनिया का हर मुसलमान आब ज़मज़म के हुसूल की ख्वाहिश रखता है। चिट्टापुर के जिले परिषद हाई स्कूल में साबिक़ा नायब वज़ीर आज़म बाबू जगजीवन राम जयंती तक़रीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। चिट्टापुर में वाक़ जिले परिषद हाई स्कूल में साबिक़ा नायब वज़ीर आज़म बाबू जगजीवन राम जयंती की तक़रीब को शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मंडल एजुकेशन ऑफिसर बी राजेश्वर ने खिताब करते हुए कहा कि दलित व पसमानदा तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की तरक्की के लिए बाबू जगजीवन राम की जानिब से फ़राहम करदा ख़िदमात को काबिल सताइश करार देते हुए बताया कि इन्होंने अपनी सियासी ज़िंदगी के दौरान 50 साल बेहतरीन पार्लियामेंटियन के तौर पर ख़िदमात अंजाम देने के अलावा मरकजी वजीर ज़राअत के तौर पर नेहरू के काबीना में खिदमात अंजाम देने का मौका बाबू जगजीवन राम को फ्राहम होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुकामी इंचार्ज सदर मुदर्रिस नर्सरेडी अपर प्राइमरी स्कूल के सदर मुदर्रिस व दीगर असातिज़ा साहिबीन ने शिरकत की। साबिक़ा नायब वज़ीर आज़म बाबू जगजीवन राम की 115वीं जयंती के मौके पर ज़िले टीआरएस सदर आर्मी रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी इनके मुजस्समे पर फूलमालाएं पहनाते हुए पेश की खराज तहसीन। साबिक़ा नायब वज़ीर आज़म बाबू जगजीवन राम की 115वीं यौम पैदाइश तक़रीब के पेश नज़र शहर में मुनक़्क़िद होने वाले प्रोग्राम में ज़िले टीआरएस सदर आर्मी रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने शिरकत करते हुए पहले मरहले के तौर पर बाबू जगजीवन राम के मुजस्समे पर फूलमालाएं पहनाकर भरपूर खराज क़दर पेश की और बातज़ा इन्होंने खिताब करते हुए बाबू जगजीवन राम की जानिब से समाज में तब्दीली लाने के अलावा दलित व पसमानदा तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम के हुकूक़ को दिलवाने के लिए इनकी हयात से फ़राहम करदा ख़िदमात को ताहयात तक याद रखने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी, RTC MLA रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन, अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता, MLC VG गौड राजेश्वर के अलावा ZP चेयरमैन विठल राव ने शिरकत। ఆధిపత్యం లేకుండా ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా భరతమాత జాతి ముద్దు బిడ్డైనటువంటి మన బాబు జగజీవన్ రావు గారు ఆ రోజే అంటరాంతరాన్ని మరి బయటకు తీసి 3 కుండలు పలబెట్టిన సంఘటన కూడా మీకు తెలియజేస్తాం కాబట్టి ఆ రోజే ఎదుర్కొన్నాం కాబట్టి అట్లాంటి సంఘటనలు పునరావృతం కాకుండా మేము బాజిరెడ్డి గారు గణేష్ గుప్తా గారు కూడా మా మంత్రివర్యులు రాజేశ్వర అందరి ఆధ్వర్యంలో విఠల్ రావు గారు అందరి ఆధ్వర్యంలో మేయర్ గారిని అందరూ చూసుకునే బాధ్యత మాదని చెప్పి సందర్భంగా హామీ ఇస్తూ మరి మరొకసారి జై రామ్ తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను। జై రామ్। दलितों की माशी तरक्की के लिए CM KCR दलित बंधु स्कीम को मुतारफ करवा के एक तारीख कायम करने का रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने किया खिताब। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने शहर के राजीव गांधी ऑडिटोरियम में दलित बंधु स्कीम के इस्तेफादा कुननकान की जानिब से मुंतखब करदा यूनिटों की मंजूरी से मुताल्लिका दस्तावेजात व ट्रांसपोर्ट गाड़ियों की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर ZP चेयरमैन विठल राव, RTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन, अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता, जिला टीआरएस सदर आर्मी रुकन असम्बली जीवन रेड्डी, जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी मौजूद थे। इस मौके पर रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि 60 साल के दौरान दलितों की तरक्की के लिए कई स्कीमात रूबे अमल में लाई गई, लेकिन इससे दलितों की माशी तरक्की न होने के बायस CM KCR ने कामयाब दूरअंदेशी के तहत दलित बंधु स्कीम को मुतारफ करवा के दलितों को माशी तरक्की दिलवाने में कामयाबी हासिल करने का इजहार किया। చాలా మంది మేము చాలా చర్చల్లో కొందరు 3 లక్షలు ఇవ్వండి అన్నారు, కొందరు 5 లక్షలు అన్నారు, చాలా రకాలుగా చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు. కానీ ఒక బిజినెస్ అంటూ చేసుకోవాలంటే రూపాయి సంపాదించాలి, నలుగురికి ఇంకా ఉద్యోగం పుట్టియాలి అని అంటే ఎంత కావాలని ఆలోచన చేసి ఒక 10 లక్షల రూపాయలు అయితే బాగుంటుంది అని ఆలోచన చేసి 10 లక్షల రూపాయలు అప్పుడు 1,00,000, 2,50,000 స్కీమ్ల బదులు 10 లక్షల రూపాయలు చేసేసారు.
ఇట్లా ఇది ఒక మనసు పెట్టి ఆలోచనతో చేసిన కార్యక్రమం. రాజకీయాల కోసం మనుషుల కోసం చేయాలంటే 10 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చి ఊరందరికీ ఇవ్వచ్చు ఒకటేసారి. దాంతో మళ్ళా మొదటికే దాంతో లాభం లేదు. కాబట్టి కలిగిన కుటుంబంలో నా తమ్ముడు లేకపోతే నా ఇంట్లో ఏదైనా బిజినెస్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఎక్కడ పోవచ్చు. ఆ డబ్బు ఆయనదే ఉంటే ఎట్లా చేసుకుంటాడు అన్న ఒక భరోసా కాన్ఫరెన్స్కి అంటే అన్నీ కూడా కాన్ఫరెన్స్కు ప్రతిదీ కూడా కాన్ఫరెన్స్ ఇచ్చాము సార్. ఇక్కడ కాన్ఫరెన్స్ సంబంధించి ఇద్దరికి కూడా పైన స్టేజ్ పైన లీడర్ స్టేజ్ పైన ఇద్దరికి కాంట్రాక్ట్ ఇద్దరు ఎగ్జిక్యూటివ్ స్టాఫ్ బయట కూడా మిగతా వాటిని కూడా ఈ కాన్ఫరెన్స్ స్టాఫ్ ద్వారా పంపించి ఏర్పాటు చేస్తున్నాము. కొద్దిగా ట్రాన్స్పోర్ట్ సెక్టార్లో డీడీ గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తాము. ఈరోజు సాయంత్రానికి అన్ని ఏది టెంపరీ వర్క్స్ అన్ని కూడా మీరు పూర్తి ఈరోజు సాయంత్రమే. साबिक़ा नायब वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर बाबू जगजीवन राम की जानिब से फ़राहम करदा खदमात के ताल्लुक़ से हर फर्द वाक़िफ़ियत हासिल करने का आरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजरेडी गोवर्धन ने किया इज़हार। हिंदुस्तान की साबिक़ा नायब वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर बाबू जगजीवन राम की 15वीं यौम पैदाइश तक़रीब के पेश नज़र शहर के रेलवे कमान के पास वाक़ अम्बेडकर भवन में मुनक़्क़दा प्रोग्राम में आरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजरेडी गोवर्धन ने शिरकत करते हुए पहले मरहले के तौर पर बाबू जगजीवन राम के मुजस्समे पर फूल मालाएं पहनाकर भरपूर तरीके से क़िरात अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर परेशान रेड्डी भी मौजूद थे। इस प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए आरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजरेडी गोवर्धन ने कहा कि दलित व पसमानदा तबका से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की तरक्की के लिए अपनी ज़िंदगी की भी परवाह न करने वाले एक अजीम रहनुमा बाबू जगजीवन राम की जानिब से फ़राहम करदा खिदमात को अवाम ताहयात तक याद रखने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में ज़िले टीआरएस सदर आर्मू रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी, अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता, एमएलसी वीजी कोट, एमएलसी राजेश्वर राव, जेडपी चेयरमैन विठल राव, जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी, धरपल्ली जेडपीटीसी मेंबर बाजरेडी जगन मोहन व दीगर ने शिरकत की। దళిత సమాజం ఇంకా అక్కడ ఉందంటే దాని కారణం దాని నాయకులే సాధ్యం లేవనప్పుడు ఆ నాయకుల నిజాయితీ ఉదాహరణ ఇస్తుంది. దళితులు ఎస్టీలు వాళ్ళు రాజ్యాంగంలో సమాధానం అనుకుంటేవారు. దాని పక్క గిరిజన ఎస్టీలు అభివృద్ధి పథకం తీసుకుపోతా ఉన్నారు. దళితులేమో అడ్డు. दलितों की माशी तरक्की के लिए सीएम केसीआर की जानिब से मुतारफ करदा दलित बंधु स्कीम के तहत मंजूर करदा यूनिटों की रियासती वजीर परेशान रेड्डी ने कोटगिर, वर्नी, रुद्रुर, मौसरा, चंदुर मंडलों के मुस्तहिकीन को फ्राहमी अमल में लाया। रुद्रुर मंडल की मुकाम पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचुनाम श्रीनिवास रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर केसीआर की जानिब से दलितों की माशी तरक्की के लिए मुतारफ करदा दलित बंधु स्कीम के तहत मंजूर करदा यूनिटों को कोटगिर, वर्नी, रुद्रुर, मौसरा, चंदुर मंडलों से ताल्लुक रखने वाले इस्तेफादा कुननगान में यूनिटों की फ्राहमी अमल में लाए गए। इस मौके पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि सीएम केसीआर की जानिब से पहले किए गए ऐलान के मुताबिक हल्के के 100 अफराद को दलित बंधु स्कीम के तहत फैज़याब किया जाएगा और दूसरे मरहले के तौर पर हल्के के 2000 अफराद को दलित बंधु स्कीम के तहत फायदा पहुँचाने के मुताबिक मनसूबाबंदी को मुकम्मल करने का इजहार किया। నిజామాబాద్ కామారెడ్డి జిల్లా కలుపుకొని 100 అక్కడ 50 ఇక్కడ 50 రేపు మళ్ళా ఈ నెల నుండి కొత్త బడ్జెట్ మన అసెంబ్లీలో పాస్ అయింది. ఈ కొత్త బడ్జెట్ ద్వారా ప్రతి నియోజకవర్గానికి రెండో విడత కింద 2000 మంది లబ్ధిదారులకు ఈ దళిత బంధులో పోతున్నారు. దీనికి సరిగా మీరు వాడుకోవాలి. తన 10 లక్షలు పోయి 5 లక్షలు నాకు కాకుండా వ్యాపారం చేసుకున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు చాలా మందికి దుకాణం పెట్టుకుంటున్నారు. ప్రైవేట్ వ్యాపారం దగ్గర 2 రూపాయల వడ్డీ తీసుకొని పెట్టుకుంటున్నారు కొంతమంది. ఇదేం లేదు వడ్డీ లేదు.
చాలా గొప్ప అద్భుతమైనటువంటి పథకం భారతదేశంలో మన తెలంగాణలో మన ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రారంభించారు. ఇది ఇంతటితో ఆగదు. ఈ 2000 మందికి ఇచ్చినంత మాత్రాన్ని కాన్పూర్ కాన్ఫరెన్స్ లో 7,000 కుటుంబాలు ఉన్నాయి. 7,000 కుటుంబాలు ఉన్నాయి. అందులో కొంత ఉద్యోగస్తులు పోగా, కొంతమంది ఒంటరి మహిళలు పోగా, భార్య పిల్లలతో భార్య భర్తలతో పిల్లలతో బతికే కుటుంబాలు 6,000 నుంచి 7,000 కుటుంబాలు ఉంటాయి. शदीद गर्मी के बाद तेलंगाना में हल्की बारिश का इम्कान। मराठवाड़ा और शुमाली दाखिली तमिलनाडु में मौसमी तब्दीलियों के नतीजे में तेलंगाना में शदीद गर्मी की लहर के बाद हल्की बारिश हो सकती है। कहा गया है कि आइंदा 2 दिन के दौरान रियासत में कई मुकामात पर हल्की बारिश हो सकती है। आदिलाबाद, निर्मल, कमरमभीम, निजामाबाद, मेदक, संगारेड्डी, नलगोंडा और सूर्यापेट में बारिश हो सकती है। हैदराबाद में भी मतला जुज़वी अबर आलूद हो सकता है और गरज चमक भी मुमकिन है। आइंदा 48 घंटों के दौरान शहर में भी मौसम तब्दील हो सकता है और शाम या रात के वक्त गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी का भी इम्कान है। बोधन की विजय साई स्कूल में एनुअल डे का शानदार पैमाने पर इनेकाद। बोधन के विजय साई स्कूल में मुनक़दा एनुअल डे में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले गंपा नागेश्वर राव तलबा से खिताब करते हुए कहा कि तलबा तमाम मैदानों में तरक्की करने के लिए सातिज़ा साहिबिन के साथ वालिदैन का भी कलीदी किरदार निहायत ही ज़रूरी है। इन्होंने मज़ीद कहा कि तलबा अपने मुस्तक़बिल को शानदार बनाने के लिए शुरू से ही सख्त मेहनत के साथ तालीम हासिल करते हुए आला ओहदों पर फायज होकर अपने माँ बाप व स्कूल का नाम रोशन करने का इजहार సింపుల్ గా ఉంటుందని చెప్పే సింపుల్ గా ఉంటుంది. పవర్ఫుల్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ ప్రస్తుతానికి 18 మంది ఐపీఎస్ ఉన్నారు, 24 మంది ఐఏఎస్ ఉన్నారు, 200 మంది కంటే జడ్జిలు ఉన్నారు. టాప్ మోస్ట్ అమెరికాలో ఉన్నారు, న్యూజిలాండ్ లో ఉన్నారు, ఆస్ట్రేలియా ఉన్నారు, ఇండస్ట్రియలిస్ట్ ఉన్నారు, టాప్ మోస్ట్ ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీ స్టూడెంట్స్ గా ఉన్నారు. అన్న మీరు కూడా టాప్ మోస్ట్ కాదనుకున్నారా? रकम सरखा करने के मकसद के तहत टावल के जरिए रामलू का गला दबाकर हलाक करने वाले कातिल के सतीश को तहवील में लेकर रिमांड पर मुंतकिल करने का एसीपी वेंकटेश वर्लू ने किया सफाती बयान। एसीपी वेंकटेश वर्लू ने सहाफती नशिस्त का एहतमाम करते हुए कहा कि मोपाल मंडल के सिरपुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले के सतीश नामी शख्स मेहनत मजदूरी करते हुए जिंदगी गुजारा था। एक दिन मलकापुर मुस्तकर पर काम करने वाले रामलू व इनके बहू कोटाबाई के पास मौजूदा रकम का सरखा करने के मकसद के तहत काम करने वालों को एक लकड़ियों का गट्ठा उठाने के लिए कहकर एक तालाब के पास ले जाकर रामलू से रकम छीनने की कोशिश में नाकाम होने की सूरत में सतीश ने रामलू को टावेल के जरिए गला घोंटकर हलाक करने के मुतालिक हासिल करदा इत्तला पर सीआई सुरेश ने फौरी तौर पर जाए मुकाम पर पहुंचकर कातिल को तहवील में लेकर जांच पड़ताल करने के बाद जुर्म कबूल करने वाले खाती के सतीश को रिमांड पर मुंतकिल कर दिया गया। కాంపోస్ట్ షెడ్ వద్ద నిందితుడు క్రైమ్ నంబర్ 96/22 अंडर सेक्शन 302-201 IPC में निंदिతుడిని रियासत में गर्मी की शिद्दत का सिलसिला जारी। महकमे मौसमियात ने पेश खयासी की कि तेलंगाना में आइंदा 4 दिनों दर्जे हरारत में 43 तक 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा। महकमे मौसमियात डायरेक्टर नागर रत्ना ने कहा कि रियासत के कई मुकामात पर दर्जे हरारत 40 डिग्री से तजावज़ कर दिया गया है। गुज़िश्ता साल मार्च के बरखिलाफ जारिया साल मार्च में मामूल के दर्जे हरारत में 1 या 2 डिग्री का इजाफा हुआ है। इन्होंने कहा कि रियासत के शुमाली अजला में जारिया माह दर्जे हरारत मामूल से ज़ायद दर्ज किया जाएगा। कई मुकामात पर 2 दिन येलो अलर्ट जारी किया गया है। आइंदा 3 दिनों में करीमनगर, आदिलाबाद में दर्जे हरारत 42 तक 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज हो सकता है। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। दलित बंधु स्कीम पर अमल टीआरएस हुकूमत का तारीखी कारनामा। जिले मरकज पर दलित बंधु इस्तीफादा कुरिंदान में रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने की गाड़ियों की तकसीम। टीआरएस जिले सदर पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी, टीएसआरटीसी चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन व एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने की शिरकत।
रवा साल आज़मीन हज के लिए खुशखबरी। हज 2022 के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल होने का राज्यसभा में वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नक़वी ने किया ऐलान। मुत्तहदा ज़िले में बाबू जगजीवन राव जयंती तक़रीब का जोश व खरोश के साथ इनेक़ाद। शहर में मुनक़िदा तक़रीब में रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी, TRS ज़िले सदर PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी, TSRTC चेयरमैन बाज रेड्डी गोवर्धन, MLA बीगाला गणेश गुप्ता व दीगर ने की शिरकत। समाज का सबसे कमजोर तबका दलित तबका है और इसकी तरक्की के लिए CM KCR की जानिब से मुतारफ करदा स्कीम दलित बंधु की पूरे मुल्क में नज़ीर है। रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने इस्तिफादा कुनिंदगान यूनिट की तकसीम। मौसमी गर्मा व माह रमजान के मद्देनजर इफ्तार के दस्तरखान पर आई कई तब्दीलियां, मशरूबात के इस्तेमाल में हुआ इजाफा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।